ریاست بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اتحاد، ایمان اور تنظیم سے اپنی راہ میں آنے والے کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکتے ہیں۔ خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں کردار ادا کرنے والے ہیروز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم پاکستان پر پیغامات۔ یوم پاکستان پر امریکی صدر جو بائیڈن کی صدر ڈاکٹر عارف الوی کو مبارکباد۔ پاکستان امریکہ پارٹنرشپ علاقائی امن و خوشحالی کے مشترکہ مقصد پر مبنی ہے۔ مشترکہ چیلنجز خصوصاً افغانستان میں قیام امن، کورونا وبا اور ماحولیاتی تبدیلی پر قابو پانے کے لیے باہمی تعاون جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر ایوانی صدر میں یوم پاکستان کے موقع پر تقسیم اعزازات کی تقریب۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نمایاں خدمات پر اہم شخصیات کو اعزازات سے نوازا۔ صوبائی دارالحکومتوں میں بھی اعزازات دینے کی تقاریر۔ بقائے وطن کے لیے افواج پاکستان اور سول فورسز نے بے شمار قربانیاں دی۔ حکومت نے 2.5 سال میں ملک کو درست سمت پر گامزن کیا۔ معاشی ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ ایسے پاکستان کے لیے کوشاں ہیں جہاں قانون کی بالادستی ہو۔ سینیٹر شبلی فراز۔ یوم پاکستان کے موقع پر مختلف ممالک میں پاکستانی سفارتخانوں اور ہائی کمیشنز میں پرچم کشائی کی تقاریب۔ صدر و وزیر اعظم کے پیغامات پر سنائے گئے۔ ملی نغموں اور مختلف پروگرامز کا انعقاد۔ پاکستانی ہے مقبوضہ کشمیر میں یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد۔ پاکستانی پرچم لہرائے گئے۔ گلی کوچوں میں قائد اعظم محمد علی جناح، وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تصاویر والے پوسٹر سے سپام۔ کشمیری خواتین اور بچوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا۔ متنازع زرعی قوانین کے خلاف بھارتی کسانوں کی تحریک جاری۔ کاشتکاروں کا 26 مارچ کو کرناٹک بند کرنے کا اعلان۔ دلی میں کسانوں کی تحریک کی رہنمائی کرنے والے کسانوں، دلتوں اور مزدور گروپوں کے اتحاد نے بھی کرناٹک بند کرنے کی حمایت کر دی۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر، 3,270 نئے کیسز رپورٹ۔ مزید 72 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 13,935 ہو گئی۔ دنیا بھر میں 12 کروڑ 44 لاکھ افراد کورونا سے متاثر، 27,38,000 سے زائد ہلاکتیں۔ بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن۔ مانگ میں کمی کے باعث تیل کی قیمتیں گر گئی۔ اسٹاک مارکیٹس میں غیر معمولی مندی کا رجحان۔ سردی پھر لوٹ آئی۔ اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش۔ سندھ اور پنجاب کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ فصلوں کو نقصان۔ مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے کے واقعات۔ ندی نالوں میں طغیانی۔ گرین شرٹ اور گولڈن سٹار پہن کر گراؤنڈ میں اترنا میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اپنے پرچوں کو سربلند رکھنے کے لیے بھرپور محنت کروں گا۔ پاکستان میری شناخت ہے، اپنی ثقافت کے امین ہے۔ پاکستان زندہ باد، 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 پاکستان زندہ باد۔ یوم پاکستان کے موقع پر کھلاڑی بھی ملک و قوم کی ترقی و سلامتی کے لیے دعا کو۔ قومی کرکٹرز کا ویڈیو پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار۔ قومی پرچم سربلند رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ اور کوئٹہ میں 17 سال بعد نیشنل ہاکی ٹورنامنٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ جام کمال نے ایونٹ کا افتتاح کیا۔ چیف منسٹر بلوچستان ہاکی گولڈ کپ میں 13 صوبائی اور ڈپارٹمنٹل ٹیمیں مد مقابل۔ ایونٹ کا فائنل 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इन खबरों की डिटेल जानिएगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पहाड़ी खित्ते जो दुनिया के जंगलात का 5वां हिस्सा है, आलमी सतह पर बेहद अहमियत रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निहायती हसास पहाड़ी सिलसिले को मौसमियाती तब्दीली की वजह से खतरात दरपेश हैं। कुदरती जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देकर 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का शजरकारी मुहिम के तहत गिलगित बल्तिस्तान में 17 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आइंदा नस्लों के लिए इन पहाड़ी वादियों की हरियाली को महफूज रखने में हमारा साथ दें। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम पाकिस्तान इस अहद की तजदीद के साथ मनाया गया कि वतन अजीज को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुर के मुताबिक हकीकी इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाया जाएगा। अहले वतन ने नमाज फजर में अल्लाह ताला के हुजूर सजदारेज़ होकर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। दिन की मुनासिबत से वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। कौम ने अपने अजीम रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश किया, जिनकी बेलोस क़यादत और कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, जिसकी रोशनी में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन हासिल किया। खराब मौसम और बारिश के बायस पाकिस्तान डे परेड का शेड्यूल तब्दील किया गया था। मुसल्लह अफवाज की परेड अब 25 मार्च को होगी। इस मौके पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मकामी तातील होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम अपने पैगाम में पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने के अज़्म का इयादा किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि इस तारीखी दिन पर हम अपने मुआशरे को पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के लिए इंसानियत दोस्त, जामे और रवादार बनाने की जद्दोजहद जारी रखने का अहद करते हैं। इस दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना चाहिए, जिन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 दहाइयों से महकूम बना रखा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की जानिब से इंसानी हुकूक की पामालियों का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। आज हमें कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अहम किरदार अदा करने वाले अपने हीरोज को भी सलाम पेश करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि इस दिन बरे सगीर के मुसलमानों ने खुद को हिंदुत्व ज़हनियत के जबर और गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करने के लिए एक अलहदा वतन के क़याम का फैसला किया। हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दिए उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस दिन हम गैर कानूनी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बेगुनाह लोगों से इज़हार यकजहती करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए उनकी अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से कहा कि आएँ कानून की हुक्मरानी, काबिलियत, मसावत और हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर एक तरक्की पसंद और खुशहाल रियासत बनाने के अज़्म की तजदीद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हमें उस वक्त कोरोना वबा का सामना करने के लिए मजबूत रहने की ज़रूरत है, जिसने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि 15 सदियां पहले हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली फलाही रियासत कायम की थी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि उस रियासत मदीना की बुनियाद कानून की हुक्मरानी, रहम और रवादारी पर रखी गई। इल्म का हुसूल फर्ज करार दिया गया। चंद दहाइयों में मुसलमान आने वाली कई सदियों तक सबसे बड़ी तहजीब बन गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जब मुसलमान उन रहनुमा उसूलों से दूर हुए तो उनकी तहजीब का सवाल शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि 80 साल पहले आज के दिन हमारे कायद ने हमें पाकिस्तान का ख्वाब दिया, जिसका तसव्वुर अजीम फलसफी और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था और ये रियासत मदीना के उसूलों पर मबनी था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लिखा है कि अब तक हम अपनी अजीम सलाहियत को हासिल करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि हम अपने कायद के विजन को खो चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज पाकिस्तान में ताकतवर को कानून की हुक्मरानी के तहत लाया जा चुका है और पनागाहों, एहसास और हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के जरिए फलाही रियासत के क़याम की राह पर गामज़न है।
यौम पाकिस्तान के मौके पर अमेरिका के सदर जोसेफ बाइडन ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को मुबारकबाद दी है। यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम अपने खत में अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि पाकिस्तान अमेरिका इस तरह के अमल इलाकाई अमन खुशहाली के मुश्तरका मकसद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका चैलेंजेस खुसूसन अफगानिस्तान में क़याम अमन, कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए बाहमी ताउन जारी रखेंगे। सदर बाइडन ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ शराकतदारी को मुस्तकबिल में मजबूत बनाएंगे। सदर मुमलिकत का पैगाम तो आपने देखा। अब आपको बताएं कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 88 अफराद को सिविल अवार्ड अता किए हैं। एजाज देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई और तकरीब में विफाकी वज़रात, सफ़ीरों और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के 3 सेशंस हुए और पहले सेशन के दौरान मुसव्वरी, सूफियाना कलाम, अदब और शायरी के शोबों में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली मुमताज़ शख्सियात को निशान इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और सितारा शुजात के एजाज़ अदा किए गए। दूसरे सेशन के दौरान तालीम, खिदमत आमा, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग, नातखानी, खेलों और फ़न अदाकारी और गुलकारी के शोबों के बड़े नामों को सितारा इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा क़ायद आज़म, सितारा खिदमत और तमगा पाकिस्तान से नवाजा गया। तीसरे और आखिरी सेशन में शुजात और बहादुरी का मुजाहिरा करने वालों को तमगा शुजात और खिदमत पाकिस्तान, खिदमत आमा, फ़न अदाकारी और फ़न अदब लिखारी के शोबों में नुमाया किरदार अदा करने वालों को तमगा इम्तियाज़ अता किया गया। लेकिन मारूफ शायर अहमद फराज को उनकी खिदमत के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ अता किया गया है। उनका एजाज़ बाद अज़ मर्ग उनके बेटे सादी फराज ने वसूल किया। अहमद फराज की जिंदगी और फन के बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। के बाइज्जत सैयद घराने में 12 जनवरी 1931 को आंख खोलने वाले सैयद अहमद शाह के वालिद सैयद मोहम्मद शाह बर्क फारसी और उर्दू के मायानाज शायर थे। अहमद शाह भी छोटे थे कि वालिद बसिलसिला रोजगार पेशावर मुंतकिल हुए। नौजवानी ही से अदबी माहौल मुयस्सर होने पर अहमद शाह शेर कहने लगे और यूं अहमद शाह से अहमद फराज हुए। अभी एडवर्ड्स कॉलेज में बीए के तालिब इल्म ही थे कि उनका पहला मजमुआ तन्हा तन्हा शाया हुआ। रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की, फिर पेशावर यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू और एमए फारसी किया और इसी यूनिवर्सिटी में ही तालीम व तदरीस से मुंसलिक हुए। बादशाह पाकिस्तान नेशनल सेंटर में डायरेक्टर, फिर अकादमी अदबियात पाकिस्तान के पहले सरबराह और उसके बाद लोक वर्षा और नेशनल बुक फाउंडेशन के सरबराह रहे। अहमद फराज अपने कलाम की ताजगी, बयान में शगुफ्तगी, मज़ामीन की सच्चाइयों और अपने मशहूर कुन शख्सियत की बदौलत महबूब तरीन शायर बन गए। बादशाह उनकी इनकलाबी और मज़ाहमती शायरी को भी मुल्की और बैरून मुल्क शानदार पजीराई मिली, जो शायद ही उनके अहद के शोरा के हिस्से में आई। ऐ मेरे सोख्ता जानो, मेरे प्यारे लोगो, अब के घर जलजले आए तो कयामत होगी। मेरे दिलगीर, मेरे दर्द के मारे लोगो, किसी गासिब, किसी जालिम, किसी कातिल के लिए खुद को तकसीम न करना मेरे सारे लोगों। फराज ने अपनी जिंदगी हर्फ की हुर्मत, जमहूरी उसूलों की सरबुलंदी, महरूम तबकों की दिलगीरी और आज़ादी इजहार के लिए गोया वक्फ कर दी थी। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपा के जान से लिखा, जबी तो लोच कमां का जुबान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईजा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगा न जाएगा। उन्हें मुताद्दिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात और अवार्ड से नवाजा गया। वो 25 अगस्त 2008 को इस दारे फानी से कूच कर गए और वो यहीं इस्लामाबाद में मदफून हैं। और नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे यौम पाकिस्तान के मौके पर मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। तफसील जानेंगे नवीद हयात की इस रिपोर्ट में। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने अजीम फलसफी शायर के मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। रेंजर्स के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ पाक फजाइया के दस्ते के सुपुर्द किए और दोनों दस्तों ने सलामी पेश की।
تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل ندیم اختر خان نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھول چڑھائے۔ اس موقع پر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ایئر وائس مارشل ندیم اختر خان نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل عامر مجید نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ یوم پاکستان کے موقع پر بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر اہم شخصیات نے حاضری دی ہے۔ اسی بارے میں آپ کو دکھائیں گے کراچی سے ضمیر عباس کی رپورٹ۔ یوم پاکستان کے موقع پر سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور گورنر عمران اسماعیل نے صوبائی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ دونوں رہنماؤں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کرتے ہوئے بر صغیر کے عظیم رہنما کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ قائد اعظم کے افکار اور اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن اس کو ہم نے لے کے آگے بڑھانا ہے۔ اس وقت ملک کو پہلے سے سب سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے وہ ملک جو ہمیں قائد اعظم نے عطا فرمایا اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بالکل نقش قدم پر پاکستان کو لے جا رہے ہیں۔ دقتیں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن انشاءاللہ اس ناؤ کو بھی پار لگائیں گے اور پاکستان وہی پاکستان عظیم پاکستان بنے گا جس کا قائد اعظم محمد علی جناح نے ویژن پیش کیا تھا۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی یوم پاکستان کے موقع پر مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ بعد میں تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ پاکستان رینجرز سندھ کے ڈی جی میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ کراچی کے شہریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد نے بھی یوم پاکستان کے موقع پر مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ یوم پاکستان کے موقع پر قائد اعظم کے اہل خانہ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا اور اس کی بقا کے لیے افواج پاکستان اور سول فورسز نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ وہ اسلام آباد میں یوم پاکستان کے حوالے سے تصویری نمائش سے خطاب کر رہے تھے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ حکومت نے 2.5 سال میں ملک کو درست سمت پر گامزن کیا ہے۔ جڑواں شہروں میں یوم پاکستان کی مختلف تقریبات کی تفصیل جانیں گے رانا شہزاد السلام سے۔ سینیٹر شبلی فراز نے اسلام آباد میں یوم پاکستان کے حوالے سے تصویری نمائش کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ایام منانے کا مقصد اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق فلاحی ریاست بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں معاشرے کے اخلاقی معیار کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ کیا وہ مقصد تھا جسے لے کر قائد اعظم اور اس وقت کی لیڈرشپ ایک پورے یقین کے ساتھ ایک ایسی منزل کا تعین کیا جس کا مقصد ایک ایسا ملک تشکیل دینا، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جس میں کہ قانون، آئین اور انصاف کی بالادستی ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ہم ایسے پاکستان کے لیے کوشاں ہیں جہاں قانون کی بالادستی ہو۔ ماضی میں سیاسی حکومتوں نے اپنی چھتری تلے مافیاز کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ طاقتوروں اور اشرافیہ کو قانون کے تابع لائیں گے۔ قانون صرف ان سے سوالات پوچھ رہا ہے تو سوالات کے جواب دینے کے بجائے آپ لشکر کشی کر دیں۔ کسی مہذب معاشرے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا جو سوچ گھر کی لونڈی سمجھے قانون کو، قانون کی حکمرانی کو، وہ تو نہ سیاست نہیں کر رہی ہے، یہ سیاست کو ایک اپنے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جب وقت آئے تو یہ کہیں کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، لیکن سارا ملک جانتا ہے
کہ یہ کیا تھے اور کیا بن گئے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ قوم وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں بلندیوں کو چھوئے گی. ایسے معاشرے کی تشکیل دیں گے جہاں ہر کوئی معاشی ترقی کا خواب پورا کر سکے. اس سے پہلے سینیٹر شبلی فراز نے یوم پاکستان کے حوالے سے تصویری نمائش کا افتتاح کیا. نمائش میں تصاویر کے ذریعے تحریک پاکستان کے مختلف مراحل کی شاندار انداز میں تصویر کشی کی گئی ہے. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کشمیر اور تکمیل پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار آفریدی نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم مسئلہ کشمیر پر ایک صفحے پر ہے. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. شہریار آفریدی نے کہا کہ آج بھارتی سکھوں سمیت تمام بھارتی اقلیتیں بآواز بلند کہہ رہی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ درست نظریہ تھا. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا نے انتہا پسند بھارت کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا ہے. پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ ہم ہر سطح پر کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند رکھیں گے. ہمیں امن چاہیے مگر کشمیریوں کے خون کی بنیاد پر نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اپنی شاہراہ آزاد کرائیں گے. کانفرنس سے مختلف مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کشمیر کاز کو اپنے روزمرہ کاموں میں شامل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی. رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. دن 23 مارچ کی مناسبت سے حکومت پاکستان کی جانب سے پاکستان کے مختلف شعبوں میں ترقی کو اجاگر کرنے کے لیے سماجی میڈیا پر کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے. ایک قوم ایک منزل کے عنوان سے شروع کی گئی اس کیمپین میں پاکستان کے لیے مختلف طبقات اور شعبوں کی جانب سے خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے. ناظرین، یوم پاکستان کے موقع پر گورنر ہاؤس کراچی میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ستارہ امتیاز، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے ان شخصیات کو ایوارڈز دیے. تفصیل جانتے ہیں نورین آصف علی کی رپورٹ میں. گورنر ہاؤس کراچی میں ہونے والی سادہ اور پروقار تقریب میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے 15 شخصیات کو ایوارڈز دیے. ان میں ستارہ امتیاز پانے والوں میں تعلیم کے شعبے میں پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد مرحوم، شعبہ فنون و اداکاری میں طلعت حسین، شعبہ خدمات عامہ میں سسٹر روتھ لوئس مرحومہ، پروفیسر ریٹائرڈ ڈاکٹر خالد محمود اور سبینہ مہتاب کھتری، اور شعبہ انسان دوستی میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے پر عدنان استار علی کو اعزاز سے نوازا گیا. صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی پانے والوں میں شعبہ فنون و اداکاری میں سکینہ سمو، شعبہ فنون و آرٹ میں ذوالفقار علی، شعبہ فنون و مصوری میں عبدالقدوس عارف، شعبہ فنون و ادب میں مہتاب محبوب شامل ہیں. تمغہ امتیاز پانے والوں میں شعبہ تعلیم میں پروفیسر ڈاکٹر نعمان احمد، شعبہ تعلیم اور ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی، شعبہ فنون و اداکاری عبد الماجد جہانگیر، شعبہ خدمات عامہ میں ڈاکٹر سید فیصل محمود اور شعبہ شجاعت میں محمد اسلم شامل ہیں. اس طرح کے اعزاز ہمارے دوسرے بھی ساتھیوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دیں. آپ کا ملک آپ کے کرافٹ کو ریکگنائز کرتا ہے، آپ کے اسکلز کو. اس سے بڑی کیا مطلب، اس سے بڑا کوئی ہائیسٹ وہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کام کیا ہے. اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، ملک کے لیے بھی، لیکن ملک نے آپ کو ریکگنائز کیا. ہمارے فن کا قدر ہوا ہے، ہماری دھرتی کی مٹی کا جو ساز ہے اس کا قدر ہوا ہے، تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے. بڑی محنت کا ایسا لگتا ہے کہ صلہ ملا، جو 32-34 سال خدمت کی. اس پروقار تقریب کے موقع پر ایوارڈ حاصل کرنے والوں کی فیملیز نے بھی شرکت کی. نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی.
اب لاہور میں یوم پاکستان کے موقع پر سول ایوارڈز دینے کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کرنے والی 21 شخصیات کو ایوارڈز دیے گئے۔ اسی تقریب کا احوال معظم الدین سے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں ہونے والی سول ایوارڈز کی سادہ اور پروکار تقریب میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے افراد میں سول ایوارڈز تقسیم کیے۔ ستارہ امتیاز، صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز حاصل کرنے والی ان شخصیات کا تعلق علم و ادب، فن و ثقافت، تعلیم و تدریس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کھیل و شعبے سمیت مختلف شعبوں سے تھا۔ ستارہ امتیاز حاصل کرنے والے افراد میں نامور ٹی وی میزبان نعیم بخاری، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ فاروق شہباز، لیگ اسپنر عبد القادر مرحوم، ماہر قانون احمد عرفان اسلم شامل ہیں۔ صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی وصول کرنے والوں میں آنجہانی کرشن جی کرشن بھیل، محمد باقر نقاش، خطاط محمد شفیق، سنتو کوال، مرزا اطہر، ڈاکٹر محمد اسلم انصاری، پاکستان کبڈی کے نامور کھلاڑی محمد عرفان اور ایتھلیٹ حیدر علی شامل ہیں۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والوں میں منظور حسین، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر فیصل شہزاد، ناصر مجید، وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی زیدی، نابینا پروفیسر محمد الیاس ایوب، ممتاز احمد خان، جاوید اقبال اور انسپیکٹر زاہد لطیف ملک شامل ہیں۔ سول ایوارڈز حاصل کرنے والوں نے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ وطن عزیز کی خدمت کے لیے مزید توانائیاں صرف کریں گے۔ ایک مشکل وقت میں تھا ملک، اور میں اور میرے کولیگز کو ایسی خدمات انجام دے سکے کہ جس کی وجہ سے وہ مشکل وقتی طور پہ ٹل گئی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور ہم صدر مملکت کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ یہ اعزاز ہمیں دے۔ اچھا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو لوگ قوم کی خدمت میں مصروف ہیں ان کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم خود بھی انسپائر ہوتے ہیں، اور جو دوسرے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، وہ بہت احسن طریقے سے انسپائر ہوتے ہیں۔ میں نے جو ایفرٹ کی، کوشش کی اپنی طرف سے اس ملک اور قوم کے لیے، آج اللہ کی ذات نے مجھے اس ایوارڈ سے نوازا ہے۔ پاکستان ایئر فورس سے باگزائی انہوں نے میرے سے بہت ساری محنت کی تھی، آج اللہ کا شکر ہے جی، میں شکریہ ادا کرتا ہے پاکستان صدر عارف الوی صاحب کا، جنہوں نے سانو یہ ایوارڈ دیتا جی۔ تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات اور ایوارڈ حاصل کرنے والے افراد کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ یوم پاکستان کے موقع پر سول ایوارڈ کی اس تقریب کا مقصد اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں کو ان کی خدمات پر سراہنا اور سلام پیش کرنا ہے۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اب بلوچستان کی 9 شخصیات کو صدارتی سول ایوارڈ دیے جانے کی پروکار تقریب گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہوئی۔ تفصیل جانتے ہیں وقار احمد سے۔ گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی نے سماجی شعبے میں خدمات کے اعتراف میں 9 شخصیات کو صدارتی ایوارڈز عطا کیے۔ فن و ادب کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر دریان خان اور محمد یوسف گیچکی کو صدارتی پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ عطا کیے گئے۔ 6 شخصیات کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ تمغہ امتیاز حاصل کرنے والوں میں حبیب الرحمان پانیزئی، محمد فاروق، ڈاکٹر شیرین خان، سلیمان خان، محمد رفیق شاد اور محترمہ غزالہ جمعہ خان شامل تھے۔ پروفیسر صاحب زادہ حمید اللہ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ایک قدم اور آگے لے جاتی ہے اپنے ملک، قوم اور صوبے کی خدمت کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے۔ اگر ہمارے ملک میں ایسے قدردانی ہوتی رہی، لوگوں کا موٹیویشن ہوتا رہا، تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ۔ ہیلتھ کے حوالے سے جو کام کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کندھوں پہ ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اب یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ آپ واقعی اس ایوارڈ کے مستحق تھے، اور بھی زیادہ احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور خدمت کرنی ہوگی ملک اور قوم کی۔ اور میں گورنمنٹ کا گزار ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے سلیکٹ سمجھا، مجھے یہ دیا آج ایوارڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں انسانیت زندہ ہے، وہ ایک انسانیت کی ایک نشانی ہے ورنہ، اس وجہ سے میں بہت خوش ہوں۔ سماجی شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر 24 شخصیات کو صوبائی ایکسلنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان، صوبائی وزراء اور اعلیٰ شخصیات بھی موجود تھیں۔ ایوارڈ حاصل کرنے والی شخصیات کا کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر خدمات کا اعتراف نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے بلوچستان کے لیے ایک احساس ہے۔ نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ جدوجہد کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یوم پاکستان کے موقع پر تقسیم اعزازات کی تقریب ہوئی۔
नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने सदर पाकिस्तान की जानिब से सूबे की 10 शख्सियात को मिसाली खिदमत के एतराफ़ में सिवर एजाज़ात से नवाजा। शख्सियात कौन सी हैं, पेशावर से रिपोर्ट करेंगे साजिद अख्तर। गवर्नर हाउस पेशावर में होने वाली तकरीब में एजाज पाने वाली शख्सियात के अहल खाना, सूबाई काबीना के अरकान और दीगर सरकारी हुकाम ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर रईसा बेगम गुल को नर्सिंग और तालीम के शोबे में मिसाली खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बुलबुल सरहद के नाम से शोहरत पाने वाली मारूफ गुलकारा सुरैया खान, जो माँ जबीन कजरबाज के नाम से मशहूर थी, को गुलकारी के शोबे में आला खिदमात पर बाद आज वफात सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनका अवार्ड मरहूमा के बेटे शाहिद और अगजई ने वसूल किया। प्रोफेसर अब्बासीन यूसुफजई को अदब के शोबे में कदर खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। डॉक्टर यासर महमूद यूसुफजई को तिब के शोबे में तमग़े इम्तियाज अता किया गया। PTV पेशावर से मुतादिद उर्दू और पश्तो ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले जावेद बाबर को बेहतरीन खिदमात के एवज तमग़े इम्तियाज दिया गया। फयाज खान खिजगी को गुलकारी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान को असार कदीमा के शोबे में और प्रोफेसर डॉक्टर यार मोहम्मद ममूम को अदब के शोबे में मिसाली खिदमात पर तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। प्रोफेसर रहमतुल्लाह दर्द मरहूम को अदब के मैदान में मिसाली खिदमात पर बाद आज वफात तमग़े इम्तियाज दिया गया। उनका अवार्ड मरहूम की बेटी प्रोफेसर नादिया दर्द ने वसूल किया। प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अकबर खान को खिदमात आमा के शोबे में तमग़े इम्तियाज दिया गया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। और नाज़रीन, कोयटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला में यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर बलूचिस्तान के तारीखी शहर ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी, गवादर, चमन, कोहलू, सिब्बी, खुजदार, लोरालाई, जोब, डेरा बुगटी, तफ्तान, पशीन, खारान, डेरा मुराद जमाली और दीगर इलाकों में परचम कुशाई की तकरीबात हुई और रैलियां निकाली गई, जिनमें आला सरकारी और अस्करी हुकाम के अलावा इलाके के कबायली माहिदीन, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात, तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि बलूचिस्तान के तूल अर्ज में आज यौम पाकिस्तान को जिस जोश जज्बे से मनाया गया, वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि बलूचिस्तान की गयूर आवाम मुल्क पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत करते हैं और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यौम पाकिस्तान के मौके पर सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। इसी बारे में ज़ीशान अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। यौम पाकिस्तान के मौके पर कराची में अमन रैली का इनेकाद किया गया। रैली जौहर चौरंगी से शुरू होकर हबीब यूनिवर्सिटी पर खत्म हुई। रैली में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि यौम पाकिस्तान के मौके पर अमन वॉक का इनेकाद पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से मनोड़ा से लेकर किमाड़ी तक कश्तीरानी रेस का इनेकाद किया गया। रेस में 20 कश्तियों ने हिस्सा लिया। कौमी परचम उठाए पाकिस्तानी माहीगीरों ने पाक अफवाज और मुल्क की यकजहती के लिए भरपूर नारे लगाए। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर साकिब कमर ने रेस जीतने वाले माहीगीरों में इनामात भी तकसीम किए। यौम पाकिस्तान के हवाले से सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी पुलिस की जानिब से सिविल अस्पताल में तकरीब हुई। तकरीब में पुलिस के चाको चौमन दस्ते ने कोरोना वबा के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंटलाइन हीरोज, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलामी पेश की। नौशेरो फिरोज में यौम पाकिस्तान के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब हुई। असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरो फिरोज ने परचम कुशाई की। इस मौके पर कौमी तराने के बाद पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। कश्मोर, सक्थर, पन्नवाकिल, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना, खैरपुर, दादू और सूबे भर के छोटे बड़े शहरों में स्कूल के तलबा, असातिज़ा, समाजी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से यौम पाकिस्तान की तकरीबात हुई। इस मौके पर रैलियां भी निकाली गईं, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पंजाब का रुख करते हैं, जहां यौम पाकिस्तान के मौके पर कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए तकरीबात मुनाकिद की गई। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर और DPO ने परचम कुशाई की और सरकारी मुहिम का आगाज किया। गुजरावाला में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। नानकाना साहब में सिख कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम गुरुद्वारा जन्मस्थान में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसमें सिख कम्युनिटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। शेखपुरा, टोबा टेक सिंह, खुशाब, सियालकोट, फैसलाबाद में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत करके वतन से वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। नाज़रीन, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया था। दिन की मुनासबत से रैलियां भी निकाली गईं, जिनमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने आलमी वबा के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए शिरकत की। सरकारी और निजी इमारतों का कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर शुरका ने इस अज़्म का अयादा किया कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को एक अजीम फलाही इस्लामी रियासत बनाने के लिए जिदोजहद जारी रखी जाएगी।
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हंगू में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आईजी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस फोर्स की कुर्बानियों को भी सराहा। उधर गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम किया गया। तफसील जानेंगे मोहम्मद यूनुस से। गिलगित में यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब चिनार बाग में मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने परचम कुशाई की और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में भी यौम पाकिस्तान जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। स्कर्दू शहर में हमीदगढ़ चौक से बड़ी रैली निकाली गई। ऐवान इकबाल स्कर्दू में होने वाली तकरीब में मुकर्रीन ने कहा कि हम वतन के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की कुर्बानी के जज्बे से सरशार हैं। जिला गांचे में छोड़बट, डगोनी और मशरभूम में तकरीबात का अहतमाम किया गया। मरकजी तकरीब जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम खपलू में मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई वज़रा ने शिरकत की। चिलास में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि यौम पाकिस्तान के दिन हमें अहद करना होगा कि हम मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाएंगे। अस्तौर, नगर, खरमंग और गजर में भी तकरीबात का अहतमाम किया गया। हुंजे में होने वाली तकरीब में सीनियर वजीर उबैदुल्ला बेग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया गया। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। और यौम पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी तकरीब का अहवाल अदील अहमद खान बताएंगे। कोरोना वबा और खराब मौसम के बायस यौम करारदाद पाकिस्तान की तकरीब को मुख्तसर रखा गया था। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ईवान वज़ीर आज़म के सब्जादार में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने सब्ज हिलाली परचम लहराकर कश्मीरियों की पाकिस्तान से मोहब्बत का अज़्म दोहराया। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। पुलिस बैंड के दस्ते ने मिली नगमों की धुनों पर खूब सुर बखेरे। बाद अज़ान ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जमहूरी जदोजहद से हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि मिली यगानगत और इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। तो कायदे आज़म ने कहा था यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। ये सबका काम है, ये हुकूमत का, अपोजिशन का, और ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर लाखों जानों का नजराना पेश हुआ। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ वालिहाना मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। पाकिस्तान इनकी उम्मीदों और आरजुओं का महवर मरकज है। वो भी इस दिन के मुंतज़िर हैं कि वो भी मिलत इस्लामिया ममलकत पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम उनकी पुष्ट पर हैं। कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीरियों को कभी फरामोश किया जदोजहद को। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कुर्बानियाँ देंगे, दे रहे हैं आज भी पाकिस्तान के नाम पर। पाकिस्तान ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लिए। ये दोनों का मुस्तकबिल एक है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और यौम पाकिस्तान ही के हवाले से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद किया गया। इसी बारे में तफसीलात बता रहे हैं मुल्तान से जफरुल्लाह खान। मुल्तान में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब डीसी ऑफिस में हुई। तकरीब में जिला इंतजामिया के अफसरों और एहलकारों ने शिरकत की। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के अमले ने परचम को सलामी पेश की। मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान मरकज में जनरल मैनेजर हारून जमाली ने परचम कुशाई की। पीटीवी मरकज के अफसरों और कारकुनान ने तकरीब में शिरकत करते हुए वतन अजीज की सलामती, खुशहाली और इदारे की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। डेरा गाजी खान में परचम कुशाई की तकरीब में जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरों ने शिरकत की। लिया में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में मुनक्किदा तकरीब में वजीर आला के मुआवने खसूसी सैयद रफाकत अली गिलानी ने परचम कुशाई की। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान।
अदन यौम पाकिस्तान के हवाले से पाक बहरिया की जानिब से खुसूसी तकरीबात का अहतमाम किया गया। पाक बहरिया के मुख्तलिफ यूनिट्स में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। बहरिया कॉलेज और माड़ा में यौम पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी तकरीब और पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का अहतमाम किया गया, जिसमें मकामी लोग मिली जोश व जज्बे के साथ शरीक हुए। और नाज़रीन, दुनिया भर में कायम पाकिस्तानी मिशन में यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तानी सफारत खानों में होने वाली तकारीब में तामीर पाकिस्तान के अमल को जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया है। तफसील जानते हैं राहिल अंसार की रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के मौके पर अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेर एहतमाम वर्चुअल तकरीब का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने कहा कि पाकिस्तान अमन और सलामती और पायदार इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न है। हम नई अमरीकी इंतजामिया के साथ वसीउल बुनियाद और पायदार शराकतदारी कायम करने के मुंतज़िर हैं। नई दिल्ली में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर आफ्ताब हसन खान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर ने पूरी कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम पाकिस्तान की सादा और पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तानी सफीर राजा अली इजाज ने परचम कुशाई की। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हमें आज के दिन ये अहद करना होगा कि हमें मिलकर मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाना है। पाकिस्तानी सफारतखाना बीजिंग में होने वाली तकरीब के दौरान सफीर मोइनुल हक ने कौमी परचम लहराया। पाकिस्तानी सफीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस साल पाकिस्तान और चीन अपने बाहमी ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये दोनों ममालिक के लिए एक अहम संग मिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के मंदूब सफीर अफजाल महमूद ने सफारतखाने में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की की राह में आने वाले हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना और नज़्म ज़ब्त वक्त का अहम तकाजा है। अमान में भी पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से यौम पाकिस्तान मनाया गया और परचम कुशाई की गई। तकरीब से खिताब करते हुए अमान में पाकिस्तान के सफीर एहसन वगन ने कहा कि पाकिस्तान का क़याम बरसगीर के मुसलमानों की बेपनाह कुर्बानियों से वजूद में आया। तकरीब से दूसरे मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे से मनाया। कौंसल जनरल पाकिस्तान बिलाल अहमद भट्ट ने तकरीब में पाकिस्तानी परचम लहराया। काबुल के सफारतखाने में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने परचम कुशाई की। पाकिस्तानी सफीर ने तकरीब से खिताब करते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को दुनिया भर में उजागर किया जाएगा। यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान में तैनात मलेशिया, श्रीलंका, चीन, अज़रबैजान, तुर्की, सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों की जानिब से तहनीती पैगामात भेजे गए हैं। यौम पाकिस्तान के मौका पर तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के अहम मकामात को पाकिस्तान और तुर्की के परचमों से रोशन किया गया। दारुल हुकूमत अंकारा में जिना रोड पर यादगार को दोनों ब्रादर मुल्कों के परचमों से सजाया गया। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को भी यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी झंडों से सजाया गया। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अदन मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि अहले कश्मीर पाकिस्तान के साथ मजबूत और कसीरुलजहती रिश्तों में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के फर्जंद गोलियों की बौछार में भी पाकिस्तान का परचम लहराते हैं और ये दिन मनाते हैं और अपने शोहदा को पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सुपुर्द खाक करते हैं। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, शब्बीर अहमद डार, मोहम्मद एहसन ओंतो, यूसुफ निकाश, बिलाल सिद्दीकी, जावेद अहमद मीर, ख्वाजा फिरदौस, देवेंद्र सिंह बहल, अब्दुल अहद परा, यास्मीन राजा, पीपल्स फ्रीडम लीग, यूथ सोशल एंड जस्टिस लीग और तहरीक वहदत इस्लामी समेत हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने अपने बयानात में उम्मीद जाहिर की है कि कश्मीरी अवाम जल्द भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होंगे और पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यौम पाकिस्तान मनाएंगे। श्रीनगर, कोलगाम, शुपैयां और दूसरे इलाकों में आज मुख्तलिफ तकारीबात का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, मकबूजा इलाके की गली कूचों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तस्वीर वाले पोस्टर चस्पा किए गए। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान कश्मीरी ख्वातीन और बच्चों ने पाकिस्तान का कौमी तराना गाया और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। यौम पाकिस्तान के सिलसिले में कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 मार्च 1940 लाहौर के जलसे में कश्मीर के एक वफ्द ने शिरकत करके ऐलान किया था कि रियासती अवाम मुस्लिम रियासत का हिस्सा बनेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैयद अली गिलानी और मुस्तरद आलम भट्ट समेत सफ़े अव्वल के हुर्रियत रहनुमा खुलेआम हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे नारे लगाते रहे हैं। पाकिस्तानी है,
कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद में तकरीब में मुकर्ररीन ने बर सगीर में कायम पाकिस्तान की तहरीक के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज क़यादत की तारीफ की, जिसकी बदौलत मुसलमानों के लिए अलहदा वतन पाकिस्तान कायम हुआ। कुछ बात करेंगे कोविड-19 की। आपको अपडेट करें कि कोरोना के आलमी वबा के दौरान महफूज रहने के लिए मास्क पहनें, समाजी फासला बरकरार रखें और तमाम जरूरी एहतियात करें। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जानी नुकसान की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 72 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3270 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 13,935 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। कोरोना वबा की नई लहर के बायस बेशतर शहरों में हिफाजती इक़दाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं, जबकि ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है। इस दौरान क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील कर दी गई हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना वबा से मुतासिर होने वाले 12,44,50,000 अफराद में से 27,38,000 अमवात हो चुकी हैं, ताहम 10,04,00,000 अफराद सेहतियाब होकर जिंदगी की जानिब लौट आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पठवार में चंद मकामात पर बारिश और बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत काला -3, मालम जब्बा और लेह में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।